Properties of magnetic field lines. Heading. Properties of magnetic field lines. Number one. Number one. Magnetic field lines are magnetic field lines are continuous and closed curves traveling from north to south pole, north to south pole, outside the magnet, and south to north pole, and south to north pole, inside the body of the magnet, inside the body of the magnet. Number two, they do not intersect each other. They do not intersect each other because आगे की लाइन as such आपको पता है. If they do so, there will be two direction of magnetic field at that point, which cannot be possible. Number three, widely spaced field lines. Widely spaced field lines represent weak magnetic field, and closely spaced field lines represent strong magnetic field. उसके closely spaced field lines represent strong magnetic field. Right? Okay. डालिए हेडिंग. Magnetic dipole. And magnetic dipole moment.
A very simple concept. The dipole moment लिखा, right? So fine, magnetic dipole. Who can explain what is magnetic dipole? इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उठाइए, रिलेट करिए और बताइए व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? Two equal and opposite charges separated by some distance. Two equal and opposite charges separated by a small distance constitute an electric dipole. What is magnetic dipole? Excellent. Two equal and opposite poles separated by a small distance constitute a magnetic dipole. मतलब कि bar magnet behaves as a magnetic dipole. Current carrying solenoid behaves as a magnetic dipole. Even the current carrying loop also behaves as a magnetic dipole. ध्यान है, लूप के एक तरफ नॉर्थ पोल देखा था, लूप के दूसरी तरफ साउथ पोल, और तुम लूप के दोनों तरफ अगर डिस्टेंसेस सेम ले रहे हो तो उन डिस्टेंसेस में पोल स्ट्रेंथ सेम ही होगी. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले देखते हैं बार मैग्नेट, राइट? You take किसी को भी, this is a north pole, this is a south pole, separated by a small distance 12, right? इन दोनों पोल्स की जो पोल स्ट्रेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? सेम. फॉर एग्जाम्पल, इसकी पोल स्ट्रेंथ Qn, इसकी भी Qn, राइट? मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस constitute a magnetic dipole. Clear? Now what is magnetic dipole moment? हाँ, निकाल के बोला अच्छे से. हाँ, बोलो. NIA. हाँ, और very good. It is defined as the product of the pole strength, that is Qn, any of the pole strength to the distance between both the poles is equals to m. वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या डिफाइन किया था? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ किसका? वन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्ज. यहां पे वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ टू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पोल्स, Qm into 2m is the magnetic moment. अगर इस पे वेक्टर लगाया जाए तो ये क्या है? वेक्टर. अगर इसको रिलेट किया जाए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से, then you tell me what should be the direction of magnetic dipole moment. What should be the direction of magnetic dipole moment? North to south. South to north. North to south. किस बेसिस पे रिलेट कर रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से. भैया सी से किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन से इनसाइड में. एक्सीलेंट, वेरी गुड. हाँ, वेरी गुड. सेम रीजन. हाउ यू आर रिलेटिंग इट टू नॉर्थ टू साउथ? आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी पॉजिटिव टू नेगेटिव. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ. तो वहां पे अपन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन लेते थे नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. यहां पे लोग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ लेते हो. यहां पे डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट क्या लोगे? साउथ टू. So magnetic dipole moment is a vector quantity whose direction is from south to north. It is the product of any of the pole strength to the distance between both the poles.
बोथ पोल्स मस्ट बी अपोजिट। आने वाला पूरा लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट किया जाएगा, एक एक चीज, एक एक चीज, पूरा टू कॉपी, पूरा टू कॉपी। वहां का चार्ज यहां पे पोल स्ट्रेंथ से रिप्लेस हो गया, वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे किससे रिप्लेस हो गई, मैग्नेटिक फील्ड से। बस वहां पे था E, तो यहां पे है B, वहां पे था Q, तो यहां पे है QL। नाउ इफ आई विल आस्क यू, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल इन द मैग्नेटिक फील्ड? What is the force experienced by any pole of pole strength Qm in the magnetic field? कोई भी पोल है जिसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो है Qm, ये पोल इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में जो कि क्या है B, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? आप बोलोगे Qm इंटू B। क्योंकि मैं आपसे अगर पूछता था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज, क्यू एम एम नहीं डी 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 बी, ओके, मैं आपसे पूछता था कोई भी चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, आप कहते थे क्यू ई, बोलते थे ना, यू हैव सेड दैट द चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स क्यू ई। यहां पे चार्ज किससे रिप्लेस हो गया, पोल। चार्ज का चार्ज क्यू था, यहां पोल की पोल स्ट्रेंथ क्यूएन है, राइट? और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है बी। यू विल से द फोर्स एक्सपीरियंस्ड एफ इज इक्वल्स टू, और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ अपॉन, राइट? और थोड़ा सा आगे अगर रिलेट करें, चलो इसको रिलेशन बाद में देखेंगे, फिलहाल मैग्नेटिक मोमेंट को देखते हैं। M इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू 2L। यहां पे दो चीजें समझिए, कितनी? दो। चीज नंबर 1, पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ यू विल चेंज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी मैग्नेट, द पोल स्ट्रेंथ विल चेंज, राइट? मान लो यहां पे इसकी पोल स्ट्रेंथ है क्यूएन क्यूएन, राइट? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? मैंने इस मैग्नेट को बीच से क्या किया, काट दिया। नाउ आई हैव टू मैग्नेट्स, राइट? आप देख रहे हो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये कितना हो गया, हाफ। मतलब इस केस में अब आपकी पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी क्यूएन अपॉन 2, और इसमें भी क्यूएन अपॉन 2। अगर पहली वाली मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट था m, राइट? तो अब इन दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? m/2, और इसका भी m/, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Qm इंटू 2L। यह था इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट। न्यू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यू मैग्नेट M इज इक्वल्स टू Qm, कितना हो गया? Qm अपॉन, लेकिन डिस्टेंस अभी भी कितना है? 2L। तो Qm इंटू 2L क्या है? M। तो कितना हो गया? M अपॉन 2। में से तो नहीं आ रहा किसी का? आ रही ना आवाज? हाँ भी आ रही है। हाँ बस ठीक ठीक है, ठीक है, पढ़ते चलो, कब चली जाए देखो। ठीक है, इधर देखो, लेकिन ये काम बाद में। मैंने कहा इनिशियल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इनिशियल मैग्नेट M इज इक्वल्स टू एनी ऑफ द पोल स्ट्रेंथ Qm इंटू 2L, लिख दिया। मैंने मैग्नेट को बीच से काट दिया। मैंने आपको एक लाइन बताई कि पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आपकी मैग्नेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो रहा है, मतलब इसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? हाफ, राइट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पे आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ किया, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ Qm अपॉन 2, इसकी भी Qm अपॉन 2।
इस साइड वाले की भी QM/2, उससे कोई मतलब नहीं, कोई एक चाहिए, कोई एक चाहिए। आपने इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला m डैश इज इक्वल्स टू QM/2, डिस्टेंस अभी भी कितना है 12, QM इंटू 12 क्या है m, तो m डैश इज इक्वल्स टू m अपॉन पहली चीज। अगर ये क्लियर हुआ तो दूसरा केस है, ये देखो, दिस इज द मैग्नेट, राइट। अगेन नॉर्थ या साउथ ले लो, नॉर्थ ए, यहां पे तो वो आ रहा हो कचरा, यहां देखो, दिस इज द मैग्नेट, साउथ नॉर्थ, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 12। मैंने अब मैग्नेट को 20 से ऐसा काट दिया, क्या किया 20 से काट दिया। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर पहले इनिशियल मैग्नेटिक मूवमेंट m था, नाउ व्हाट इज m डैश, बाद की जो मैग्नेट का पीस बचा, उस पीस का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, दोनों में से किसी भी पीस का 2m, फिर से m/2, 2m, QM इंटू L। अरे हम जा कह रहे हैं कि m डैश m के फॉर्म में बताओ क्या होगा, m डैश इज इक्वल्स टू m होगा, कि m डैश इज इक्वल्स टू m/2 होगा, कि m डैश इज इक्वल्स टू 2m होगा, या क्या होगा, ऐसा पूछ रहा। फिर से m/2 ऑनलाइन, Sir, m रिपेश m/2 रेशो m, और कोई। इस केस में व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बचा हुआ टुकड़ा, m डैश इज इक्वल्स टू, पलट गए तुम अब m/2 पे थे, ऐसे ही आंसर गलत होता है, दो बार सोचोगे तो गलत होगा। गुनगुन m/2, सौम्य m/2, समय था, ओके फाइन, m डैश इज इक्वल्स टू m/2। अभी कहा था कि मैग्नेटिक मूवमेंट आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ क्या, नहीं, पहले भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही था, अभी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैडम सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब पूरी मैग्नेट का एरिया नहीं होता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है एंड का एरिया। मान लो ये क्यूबॉइडल शेप है, तो क्यूबॉइडल शेप में दो फेसेस रहेंगे ना आखिरी के, उनको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पूरे मैग्नेट के एरिया को तो एरिया कहते हैं। क्रॉस सेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट्स का एरिया। सिलेंडर के एंड सरफेसेस का एरिया कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और मैग्नेट को आड़ा काटोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा क्या, नहीं, तो आप लिखोगे m डैश इज इक्वल्स टू QM, पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही रहेगी। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ तो पोल स्ट्रेंथ भी चेंज नहीं, लेकिन आपका जो ये डिस्टेंस है वो 2l से कितना हो गया, l, कितना हो गया l, मतलब जिसको लिख सकते हो 2l/2, तो QM इंटू 2l क्या है, m अपॉन। तो चाहे मैग्नेट को ऐसा काटो चाहे ऐसा काटो, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाता है, हाफ। अगर 20 से इक्वली काट रहे हो कितना हो जाता है, हाफ। पहले केस में जब आप उसको हॉरिजॉन्टली काटोगे तो उसकी पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी, बिकॉज पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब उसको वर्टिकली काटोगे तो उसकी लेंथ हाफ हो जाएगी, राइट। और मैग्नेटिक मूवमेंट तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, लेंथ हाफ हो गई तो वो हाफ हो गई। उस केस में आपकी पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुई, इट इज सेम एज QM। क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट इससे रिलेटेड? डायगोनली काटोगे तो फिर दोनों का सेम आएगा, बिकॉज यू हैव द सेम एरिया। बट डायगोनली काटने में तो पोल्स चेंज हो जाएंगे बेटा, फिर मैग्नेट का जो शेप है वो बार मैग्नेट नहीं बचेगी। बार मैग्नेट क्या होती है, बार मैग्नेट क्या होती है, जिसके दोनों एंड सेम। लिखिए लिखिए लिखिए, खतरनाक क्वेश्चन पूछा है।
हेडिंग डाली है क्या? मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डायपोल magnetic dipole consists of a pair of magnetic poles of equal and opposite strength. Poles of equal and opposite strength separated by a small distance. राइट, बना लो। ये बस बीच की लाइन मत खींचना, ये वाली। हाँ, कोई भी बना लो, जो बना लो। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेदांत पाठक का है। देखो, मैग्नेटिक डायपोल is defined as the product of the pole strength of either pole strength of either pole and distance between the magnetic poles, distance between the magnetic poles क्या था? M is equals to QM into 12। कौन बताएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? एम्पियर मीटर स्क्वायर। बिकॉज पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आपको कल ही परसों बताई, या तो एम्पियर मीटर होती है या न्यूटन पर टेस्ला होती है। तो इसकी यूनिट या तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगी या न्यूटन पर टेस्ला मीटर होगी। राइट, कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अगर किसी चीज की यूनिट पूछता है कंपटीशन में, नीट या जेईई, तो वो सिर्फ पूछता है पोल स्ट्रेंथ। बिकॉज पोल स्ट्रेंथ की यूनिट ड्राइव करना थोड़ा सा हार्ड है। तो अगर आप वहां पे भूल गए तो आप वहां ड्राइव नहीं कर सकते, ये मान के चलिए। अगर आप 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ के जा रहे हो तो वहां पे आप ड्राइव गारंटेड नहीं कर सकते। तो आपको वहां याद रखनी है कि पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, इधर एम्पियर मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर मीटर या न्यूटन पर टेस्ला। QM into 12, राइट, यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो m वेक्टर इज इक्वल्स टू QM 12 के ऊपर वेक्टर। यहां इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, राइट।
दिस इज द मल्टीप्लीकेशन सर, इसीलिए वेक्टर के फॉर्म में हटा दिया मैंने. The direction of the direction of m vector, small m है ये, is from south to north, is from south to north. Done? अच्छा इसमें, अच्छा नोट नोट नोट, pole strength, pole strength of a magnet, of a magnet depends on area of cross section, area of cross section. Case 1, cut the magnet horizontally. Cut the magnet horizontally. तो इस केस में पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी QM/2 और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा QM/2 इंटू 2L इज इक्वल्स टू M/2 M डैश. लिख लो ऐसे, हाँ ये M डैश. अभी वर्ड्स में लिखवा देंगे इसी तो क्लियर हो जाएगा. लिख लिया. मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इसी में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या हुआ? जस्ट एक मिनट रुकना भैया. आओ, लिख लो, लिख लिख. हो गया भैया. मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट of each part is equal to half of its original value, half of its original value. Full stop. अगले वाले में केस 2, cut the magnet vertically. लिख लीजिए.
राइट, डन। इसमें भी वही सेम लाइन आएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब सिमिलरिटी को समझिए, अच्छे से देखिए। आने वाले तीनों डेरिवेशंस आपको करने हैं। कैसे? देखिए, फिर से कह रहा हूं, आने वाले तीनों डेरिवेशंस आपको करने, बस सुनिए कैसे, राइट। एफ इज इक्वल्स 1 अप, कौन है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F इज इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 अपॉन, कोई दिक्कत? इस फोर्स से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स experienced by the unit positive charge। यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट नॉर्थ पोल। वहां पे पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्थ पोल। वहां पे नेगेटिव चार्ज था, यहां पे नेगेटिव चार्ज कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? साउथ पोल, राइट। तो वहां हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट नॉर्थ पोल, सॉरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और लिख देते थे कि E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, राइट। यहां पे मैं, सॉरी यहां लिख देता हूं, आई कैन से F इज इक्वल्स टू या B इज इक्वल्स टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल। ऐसा नॉर्थ पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है? यूनिट। ऐसा नॉर्थ पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है? यूनिट। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन होगी? F अपॉन क्यू एन नॉट, यहां पे F अपॉन क्यू नॉट। या फिर सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, वेयर Q इज द चार्ज जिसकी क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे सीधा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QN अपॉन R स्क्वायर, वेयर QN इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब तो मैग्नेट लोगे तो QN दोनों के लिए सेम होगा, तो टेंशन मत लो, राइट। सो QN इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट जिसकी क्या निकालने जा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, राइट। ये फॉर्मूला कहां से आया? यहां से। अगर यहां पे मैं QM1 को यूनिट ले लूं, राइट, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। ये QM2 वो मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है जिस मैग्नेट की अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, एंड QM1 इज द यूनिट नॉर्थ पोल कहने वाली। तो मैं सीधा सीधा क्या कर रहा हूं? रिलेट। चार्ज किससे चेंज हो गया? पोल स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे चेंज हो गई? मैग्नेटिक। I can use this formula B is equals to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R। ये बात क्या हो जानी चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R। क्लियर? कोई चेंज नहीं है, टोटल सिमिलरिटी है। अगर मैं आपसे कहूं कि यह है मेरी बार मैग्नेट, कौन सी मैग्नेट? बार मैग्नेट। यह है इसका साउथ पोल, यह है इसका नॉर्थ पोल। मैंने आपसे कहा कि इस बार मैग्नेट से थोड़ा सा दूर एक पॉइंट लिया है P। ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ दिस बार मैग्नेट, ये दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? 12। और सेंटर ऑफ द मैग्नेट से लेके पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है? R। कोई दिक्कत?
want you to calculate the net magnetic field at point P due to this magnet. Can you calculate? कर सकते हो? मैंने आपसे कहा कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस बार मैग्नेट. निकाल. चलो सीधा सीधा एक्सियल का डेरिवेशन है 2 कॉपी. कोई चेंज नहीं है. चेंज सिर्फ कितना होगा? E की जगह क्या रख दोगे? B. और Q की जगह क्या रख दोगे? QN. निकाल के देखो आंसर आ जाए. अब भी कर देंगे हम 2 मिनट में. सीधा डेरिवेशन है वही. ये पोल डिस्टेंस ले लो QM, इसके भी QM. लगाओ फॉर्मूला, सॉल्व करो और निकालो. रफ में करना, रफ में पीछे गई. भरपाई नहीं होगी क्या कह रहे बेटा? इसमें कांस्टेंट की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं होगी? बिल्कुल, क्यों नहीं होगी? वही होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगी. अब भी इसमें लिख के मैंने मिटा दिया कि जिसमें आपको याद रहे. मैंने लिखा था यहां भी और मिटा दिया. राइट, कैलकुलेट. दिस इज द हेडिंग. जैसे लिखते थे ना, E एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. यहां पे हेडिंग क्या हो गई? B एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट. निकालिए जल्दी. क्या कुछ नहीं चल रहा? हाथ पांव हो गया फर्स्ट चैप्टर, भूल गए? म्यू नॉट अपॉन 4 पे निकालो. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर. नहीं 2M आएगा. या वो KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर की सेम होगा ना? क्या कह रहे बेटा? मतलब जैसे उसमें KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर था तो वैसे ही होगा इसमें, या फिर दूसरा इसमें कहा KP cos, इसमें cos थीटा नहीं लेना, इसमें रिजल्टेंट निकालना. 1 इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मतलब डायपोल में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर. cos थीटा वो तो अपन तीसरा केस निकालते थे एट एनी पॉइंट वाला, जिसमें cos थीटा आता था. पहले 2 केस में तो cos थीटा आया ही नहीं अपना. एक्सियल और इक्वेटोरियल में कहां cos थीटा आया? इक्वेटोरियल में जब रिजल्टेंट लगाया था मतलब गया तो वहां पे 0 लगा. cos थीटा इसमें नहीं होगा यूज. दीपेश, बेसिक्स जैसे अपन ने पहला डेरिवेशन किया था एक्सियल का, वैसे करना है. cos थीटा है ही नहीं इसमें. 2m आएगा. m कैसे आएगा? शायद 2m आएगा, मतलब मुझे पक्का नहीं ध्यान. वहां पे 2p आता था ना, 2p अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आया होगा. 2m अपॉन R स्क्वायर माइनस L नहीं आ रहा. हाँ, डाउट. हाँ, क्यों होगा? ये मान लो यूनिट नॉर्थ पोल है, ये यूनिट नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ को नॉर्थ रिपेल करेगा, नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा. अरे मैग्नेट के जब अपोजिट पोल्स लेके आओगे तब रिपल्शन हो. कुछ नहीं आ गया. देखो पॉइंट P पे, इधर देखो, हो गया. पॉइंट P पे अगर नेट सक्षम है, बोला ना, चल गया. ध्यान देखो, पॉइंट P पे
अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो यहां पे क्या लेके आएंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब यूनिट नॉर्थ पोल, ये राइट। ये नॉर्थ पोल के कारण यहां पे इस नॉर्थ पोल का होगा रिपल्शन, दिस इज B1, कोई दिक्कत नहीं। और इस साउथ पोल के कारण इस नॉर्थ पोल का हुआ क्या, अट्रैक्शन, दिस इज B2। नाउ वी नो दैट B1 इज ग्रेटर देन, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, कम, तो इस नॉर्थ पोल का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर B। कोई दिक्कत नहीं, लगाओ B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट, Q1 अपॉन what is the distance between north pole and unit north, this is the distance, ये हो जाएगा कितना, R माइनस L, R माइनस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, भार में जाए डायरेक्शन बाद में लगाएंगे, B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगेन साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ कितनी है, QL, QM अपॉन, और डिस्टेंस कितना है साउथ पोल से, R प्लस L, ये पूरा R और ये इतना R प्लस L का। इक्वेशन नंबर, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B1 माइनस, कोई दिक्कत नहीं, करो सबट्रैक्ट दोनों को, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और QM तो आ गया कॉमन, अंदर बचा क्या, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का, करो सॉल्व, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QL, अंदर नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहली बार तो करनी है, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ब्रैकेट ओपन कर दो, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये यहां जाएगा, तो R स्क्वायर होना था प्लस L स्क्वायर, लेकिन माइनस बाहर है, तो हो जाएगा माइनस L स्क्वायर, और होना था माइनस 2RL, तो माइनस बाहर है, तो हो जाएगा प्लस 2RL, कोई दिक्कत नहीं। R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर गया, बचा 4RL, और नीचे बचा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऑलरेडी है QM, और 4RL को लिख सकते हो 2R इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, QM इंटू 2L हो जाएगा M, और बचेगा 2R, राइट, तो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का, कोई दिक्कत नहीं। B किसके डायरेक्शन में है, M के, तो दोनों पे वेक्टर लगा दो, B का डायरेक्शन भी कहां है, इस तरफ, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, ऐसी, और मैग्नेटिक मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ, वही आ गया, सेम केस आ गया कि नहीं, तो यही करने कह रहे थे। अब जैसे कि ये वाला डेरिवेशन है, ऐसे ही कल आपकी कॉपी में इक्वेटोरियल का होना चाहिए और टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट का होना चाहिए। किस किस का होना चाहिए, इक्वेटोरियल का, और दूसरा टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, दिक्कत कटो।